محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک حافظ قرآن لڑکی کا۔ جب اس کی شادی ایک شرابی شوہر سے ہوئی تو اس ظالم شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ایسی کون سی بھیانک سزا دی جسے سن کر ہر کوئی کام کر رہ گیا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک گاؤں تھا، اس میں رہنے والا ہر انسان مسلمان تھا۔ اس گاؤں کا ایک سردار تھا جو کہ بہت ہی شریف اور نیک انسان تھا، غریب لوگوں سے بہت زیادہ پیار کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی بہت ہی زیادہ بد اخلاق تھی، غریبوں سے نفرت کیا کرتی تھی، اور اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ بہت ضدی اور آوارہ تھا۔ اس گاؤں میں ایک غریب دودھ بیچنے والا تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ ہی ان کو کسی نے قرآن پاک پڑھایا تھا۔ دیہاتی لوگ تھے، اس لیے بچپن میں ہی یہ کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ اس لیے اب اس باپ کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی عائشہ قرآن پاک پڑھے اور اس کو حفظ بھی کرے۔ وہ اپنی بیٹی کو قاریہ کے پاس چھوڑ کر آیا اور یوں اس کی بیٹی عائشہ قرآن پاک کو حفظ کرنے لگی۔ عائشہ 13 سال کی تھی جب اس نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ جس روز قاریہ نے اس کو یہ خوشخبری سنائی تو عائشہ کے ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنی بیٹی کے صدقے اتارنے لگے۔ بے شک عائشہ کے خاندان والے غریب تھے، مگر ایسے موقع پر پورے گاؤں کی دعوت کی گئی۔ جب عائشہ کا باپ اس کو قاریہ کے پاس چھوڑ کر آیا، تبھی سے اس نے پیسے جوڑنے شروع کر دیے کہ جب میری بیٹی عائشہ قرآن پاک کو حفظ کر لے گی تو میں پورے گاؤں کی دعوت کروں گا۔ اگلے ہی روز عائشہ کے باپ نے پورے گاؤں کی دعوت کی اور سب لوگ اس کے گھر میں آئے، جس میں اس گاؤں کا سردار بھی موجود تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر گاؤں کے سردار نے عائشہ کو اپنے پاس بلایا۔ عائشہ سردار کے پاس گئی اور اس نے اپنے پاس موجود خالی کرسی پر بٹھایا، اس کے سر پر بڑے محبت سے ہاتھ رکھا، اس کو دعائیں دینے لگا، پھر اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ یہ تب کی بات تھی جب 1000 کا نوٹ 10,000 کے برابر تھا۔ عائشہ نے جیسے ہی وہ پیسے دیکھے اس نے کہا کہ مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ جو میں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے اس پر عمل بھی کر سکوں۔ سردار تو جیسے اس حافظ قرآن بچی کا گرویدہ بنتا جا رہا تھا، اتنی سی عمر میں اتنی اچھی اور پیاری باتیں کرتی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بڑھ رہا تھا اور اس کو کہنے لگا، میں نے یہ پیسے تمہیں انعام کے طور پر دیے ہیں، بیٹی تم جب بھی قرآن پڑھا کرو میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ پاک اس کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ حافظ قرآن تو نہیں بن سکتا، مگر وہ ناظرہ پڑھ لے تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ حافظ قرآن لڑکی نے سردار کی بات سنی، آمین کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ نہ جانے اس سردار کو اس حافظ قرآن لڑکی میں ایسا کیا نظر آ رہا تھا، وہ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اس سردار کے پاس اس کا غلام تھا، اس نے پوچھا کہ سردار آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سردار نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ کوئی بات نہیں۔ سردار کی عادت تھی وہ کسی کے گھر میں زیادہ دیر نہیں بیٹھا کرتا تھا، مگر وہ آج سردار تب تک انتظار کر رہا تھا جب تک سارا گاؤں اپنے گھر واپس نہ چلا گیا، جہاں تک کہ اس سردار نے اپنے غلام کو بھی اپنے گھر واپس بھیج دیا اور وہاں خود بیٹھا رہا۔ حافظ قرآن لڑکی کا غریب باپ یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کہیں سردار صاحب مجھ سے ناراض تو نہیں جو ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سردار نے عائشہ کے باپ کو اپنے پاس بلایا اور کہا میری بات سنو۔ وہ آ کر زمین پر بچھی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھ گیا۔ سردار نے فوراً اسے اٹھا کر اپنے سامنے کرسی کے اوپر بٹھایا اور کہا تم اپنے حافظ قرآن بیٹی کو میری امانت سمجھ کر اس کی پرورش کرو۔ یہ سن کر وہ غریب آدمی حیران اور پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ سردار آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سردار نے کہا میں چاہتا ہوں عائشہ جیسی حافظ قرآن بچی میرے سردار گھرانے کی بہو بنے۔
इसलिए तुम आज से आयशा बेटी की परवरिश मेरी अमानत समझकर ऐसे ही करते रहना। ये सुनकर गरीब बाप की आंखों में आंसू आ गए। वो हैरत से सरदार के चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था, मेरे जैसे गरीब इंसान की क्या औकात के सरदार खानदान का समधी बनूं। वो काफ़ी देर खामोशी से सरदार को देखता रहा। जब सरदार ने उसको खामोश देखा तो हैरत ज़दा देखा और वो समझ रहा था कि ये शायद मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देना ही नहीं चाहता। इसलिए सरदार ने कहा कि तुम्हारे पास वक़्त है, तुम सोचो। मगर हाफ़िज़ कुरान लड़की का गरीब बाप सरदार को ना नहीं कर सकता था। उसने फ़ौरन ही कहा कि सरदार साहब, आज से मेरी बेटी आपकी अमानत है, आप जब चाहें इसको आकर ले जा सकती हैं। जब उस गरीब आदमी ने अपनी बीवी को ये बात सुनाई तो आयशा भी ये बात सुन रही थी। ये सुनकर आयशा रोने लगी और जल्दी से बाप के साथ लिपट गई और कहने लगी कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप कैसे मुझे अपने से जुदा कर सकते हैं। बाप ने अपनी मासूम सी बेटी को अपने गले से लगाया और कहने लगा, मेरी प्यारी गुड़िया, मैं कौन सा तुझे अभी रुखसत कर रहा हूँ, अभी बड़े साल पड़े हैं, तुम इन बातों को दिल पर मत लो। ये सुनकर आयशा को सुकून हो गया। हर वक्त अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारने लगी। वो लड़की बहुत ज़्यादा नेक थी, उठते बैठते काम करते हर वक्त कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान थी। अब तो मोहल्ले के बच्चे भी उसके पास कुरान पढ़ने के लिए आने लगे। वहाँ सरदार ने जब आकर अपनी बीवी को ये बात सुनाई, वो सरदार ने बड़े ही गुस्से से उसको कहने लगी, आपका दिमाग खराब हो चुका है। हम लोग इतने अमीर हैं और किस तरह एक गरीब घर की बेटी को अपनी बहू बना सकते हैं। कुछ तो अपने सरदार होने का ख्याल करो। अभी तो वो बच्ची है, कल बड़ी हो जाएगी, पता नहीं गरीब घराने में उसकी तरबियत कैसी हो। ये सुनकर सरदार गुस्से से कहने लगा, उस बच्ची को और उसके माँ बाप को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बेहतर है तुम अपने बेटे की तरबियत पर ध्यान दो, ऐसा न हो कहीं तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से निकल जाए। सरदारनी ने ये बात सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली और उसका अकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और ढीठ होता जा रहा था। वो सरदार अपने बेटे को वहाँ गांव के मौलवी के पास पढ़ने के लिए भेजता। वो घर से तो कुरान पाक पढ़ने के लिए निकल जाता, मगर फिर आवारा दोस्तों के साथ मिलकर खेल कूद में मसरूफ़ हो जाता। एक दफ़ा सरदार मौलवी के पास अपने बेटे की पढ़ाई के बारे में पूछने के लिए गए। वहाँ जाकर देखा उनका बेटा मौजूद ही नहीं था। उसने पूछा, मेरा बेटा पढ़ने के लिए नहीं आया? मौलवी साहब ने कहा कि आपका बेटा 10 दिन हो चुके हैं, छुट्टियाँ लेकर गया हुआ है। उसने कहा, मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है और मैं घर में अकेला हूँ, जिसकी वजह से मेरी माँ मुझे अपने पास हर वक्त बिठा कर देखना चाहती है। मौलवी साहब के कहने लगे कि मैं आज बच्चों को पढ़ाकर आपके यहाँ अयादत के लिए जाने ही वाला था, ताकि अयादत कर सकूं। ये सुनकर सरदार के चेहरे का रंग उड़ गया और सोचने लगा कि हार्ट अटैक, कौन सा हार्ट अटैक, कैसा हार्ट अटैक। उसने मौलवी को तो कुछ न कहा, खामोशी से अपने घर वापस आ गया और घर आकर अपने बेटे का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सरदार का बेटा घर आया, उसने पूछा कि आज कहाँ थे। उसने कहा, अब्बा, मौलवी साहब ने आज बहुत ज़्यादा सबक दिया था, जिसको याद करने में मुझे देर हो गई। सरदार ने अपने बेटे के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। जब सरदार ने बेटे के चेहरे पर इस तरह थप्पड़ मारा, उसकी आवाज़ उसकी बीवी तक पहुंची। वो चीखती हुई कहने लगी, मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? आखिर इसने ऐसा क्या किया है? सरदार ने चीख कर कहा, अपने बेटे से पूछो कि ये मौलवी साहब को क्या बोलकर पढ़ाई से जान छुड़ा रहा है। ये मौलवी साहब को कह कर आया है मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है और वो आखिरी दिनों में मुझे देखना चाहती है। ये सुनकर उसकी माँ ने
भी उसको ये सुनकर धक्का दिया और झटका दे दिया। और सरदार का बेटा रोने लगा, कहने लगा, मौलवी साहब झूठ बोल रहे हैं, वो सारा दिन हमसे अपने घर की सफाई करवाते रहते हैं और हर वक्त काम करवाते हैं, इसलिए मैं काम से बचने के लिए उसके पास पढ़ने के लिए नहीं जा रहा था। ये सुनकर उसकी माँ ने उसको गले से लगाया और अपने शौहर को कहने लगी, आप इस गांव के सरदार हैं, जाकर उस मौलवी को पूछें कि वो बच्चों पर आखिर इतना जुल्म क्यों करता है कि डर के मारे मेरा बच्चा वहाँ से भाग आया। उसकी माँ ने अपने बेटे को लेकर अंदर चली गई और सरदार अपना सर पकड़ कर बैठ गया और सोचने लगा कि मैंने सोचा था मेरा बेटा दीन की तालीम हासिल करेगा, मगर ये तो शायद मेरा नाम ही डुबो रहा है। सरदार ने किसी और मौलवी का बंदोबस्त किया कि शायद ये मेरे बेटे को पढ़ा दे, मगर उसने भी पढ़ाने से इनकार कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो आवारा हो गया। और वहीं दूसरी तरफ आयशा, जो कि 5 वक्त की नमाजी थी, हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहती, और वही उसका होने वाला शौहर आवारा शराबी बन चुका था। जब आयशा 18 साल की हुई तो सरदार साहब उसके घर गए। वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रही थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने कुछ पैसे आयशा के हाथ में रखे और कहा कि अपने लिए कुछ कपड़े ले आना। आयशा का बाप वो पैसे लेने से इनकार करने ही वाला था, क्योंकि उसने इन 5 सालों में सरदार के बेटे के बारे में बहुत कुछ देखा हुआ था, मगर फिर भी न जाने वो क्यों खामोश रहा और सोचने लगा, अगर सच में मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए सरदार आ गया तो मैं क्या करूँगा। वो अपनी नेक सीरत बेटी को उस शराबी बेटे के साथ ब्याह नहीं सकते थे। सरदार ने जब घर आकर अपनी बीवी को बताया कि मैं कुछ पैसे आयशा को देकर आया हूँ, ये सुनकर वो चीखने लगी कि अभी तक तुम वो बात भूले नहीं हो, वो गरीब घर की बेटी है, न जाने हमारी बहू कैसे बनेगी। सरदार ने के बेटे ने गुजरते हुए ये बात सुन ली। सरदार के बेटे को आयशा से बहुत ज़्यादा नफरत थी, क्योंकि हर वक्त सरदार अपने बेटे को उस आयशा की ही मिसाल दिया करता था। वो तो यहाँ तक सोचने लगा कि अगर ये आयशा मेरे सामने आ गई तो मैं इसको जान से मार दूंगा। जब उसको पता चला कि बचपन से ही मेरे बाप ने मेरा रिश्ता आयशा के साथ तय कर दिया तो उसका खून खौलने लगा और उसने बाहर जाकर अपने दोस्तों को ये बात बताई और कहने लगा, इस गरीब मस्कीन लड़की की क्या औकात के वो मुझ जैसे रईसजादे के साथ रिश्ता जोड़े, और कहने लगा, मैं इसको अपने काबिल तो क्या किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो सरदार की शराबी और आवारा बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसा मंसूबा बनाया कि वहां बैठी हुई आयशा, जो कि कुरान पाक को लेकर उसकी तिलावत कर रही थी, उसकी रूह लर्ज गई, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बुरा होने वाला है। वो कुरान पाक की तिलावत तो कर रही थी, मगर उसका दिल कुरान में नहीं लग रहा था। उसके दिल में बड़े बड़े बुरे ख्याल आ रहे थे। मगरिब का वक़्त हो चुका था। अचानक उनके घर में एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि आपके अब्बा की दुकान में आग लग चुकी है, वो दुकान के अंदर बंद है। जब आयशा की माँ ने ये सुना तो वो दौड़ती हुई दुकान की तरफ चली गई। उसके पीछे उसकी बहन भी चली गई। अब अकेली आयशा घर में थी। वो भी अपनी माँ के साथ जाने लगी तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा तुम यहीं रुको और अपने बाप के लिए दुआ करो, हम अभी आ जाते हैं। आयशा घर में अकेली थी। अचानक घर की दीवार फैलाकर गांव के आवारा और अयाश लड़के उसके घर में दाखिल हो गए। जैसे ही आयशा ने कदमों की आवाज़ सुनी, उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह लर्ज गई। वो लड़के आयशा को देखकर ऊंची ऊंचा हंस रहे थे। अचानक उनमें से एक लड़के ने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। आयशा ना बाहर जा सकती थी ना कहीं छुप सकती थी। वो बड़ी हिम्मत करके उन लड़कों को कहने लगी, कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उनमें से एक लड़का कहने लगा कि कुछ नहीं, हम सिर्फ तुम्हारी इज्जत को तार तार करना चाहते हैं।
आहिस्ता आहिस्ता वो लड़के आयशा के करीब होते जा रहे थे और वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और मदद के लिए अल्लाह ताला को पुकार रही थी। इतने में दरवाजे में दस्तक हुई। आयशा दरवाजे की तरफ भागी। इतने में दरवाज़ा बाहर से खुल चुका था, क्योंकि आने वाले को ये मालूम हो चुका था कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, आगे सरदार साहब खड़े थे। वो हैरानगी से आयशा को देख रहे थे। फिर उन आवारा लड़कों को देखकर उनकी रूह लर्ज़ गई। आयशा भागकर रोती हुई सरदार के पीछे छुप गई। जैसे ही उन आवारा लड़कों ने सरदार को देखा तो वो डर गए और भागने लगे। सरदार ने एक एक की शक्ल देख ली थी। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे गांव में फैल चुकी। एक हाफ़िज़ कुरान लड़की घर में अकेली थी। आवारा लड़के दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो गए। हाय हाय, उस लड़की के साथ कोई ऊंच नीच न हो गई हो। उसकी बाप की दुकान पर ना कोई आग लगी थी, ना कोई मुसीबत आई थी। ये सब सिर्फ एक साजिश थी। जब सरदारनी तक ये बात पहुंची तो वो भी सरदार को भड़काने लगी कि लड़की अच्छी नहीं है, और पास बैठा सरदार का बेटा भी भड़क उठा कि मैं ऐसी बदकार लड़की से कभी भी शादी नहीं करूँगा। सरदार जब अपने बेटे के मुँह से ये बात सुनी तो हैरान रह गया कि आखिर मेरे बेटे को इस बात का कैसे पता चला। वो बड़ी ही हैरानगी से अपने बेटे को देख रहा था, मगर सरदार के बेटे ने अपनी आंखें फेर ली, बाप की तरफ पीछा करके बैठ गया। अगले ही रोज सरदार ने उन आवारा लड़कों को बुलाया और उनको इतना मारा कि वो सब आवारा लड़के सच बोलने लगे। उन्होंने बताया कि आपके बेटे के कहने पर ही हमने ये सब किया है, ताकि उस लड़की को आपकी नज़रों से घिरा सकें और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। जब सरदार ने ये सुना तो कहने लगा, मुझे उस बच्ची पर अपनी औलाद से भी ज़्यादा यकीन था। वो अपने किरदार को कभी मैला कर ही नहीं सकती। सरदार ने अपने बेटे को कहा कि वही लड़की है जो इस घर की बहू बनेगी, और वही लड़की तुझे सुधार सकती है। अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे जायदाद से आग कर दूंगा। मजबूरन सरदार के बेटे को मानना पड़ा और सरदार आयशा का रिश्ता लेने के लिए चला गया। आयशा के माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे, ना वो इनकार कर सकते थे ना कबूल कर सकते थे, और आयशा की हालत बहुत ही बुरी थी। उसको बहुत ज़्यादा बुखार था। वो इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने ऊपर कैसे बर्दाश्त कर पा रही थी। सरदार का मानना था कि नेक सीरत बीवी ही मेरे बेटे को सुधार सकती है। जैसे ही नेक बीवी घर आएगी वो किसी न किसी तरीके से हमारे बेटे की बुरी आदतें हटाकर उसको नेक बना देगी। आयशा तो पहले ही सरदार के बेटे से शादी करने से बहुत ज़्यादा खौफजदा थी, मगर उसके माँ बाप सरदार को ना कर सके और आयशा का निकाह सरदार के शराबी बेटे के साथ हो गया। आयशा पहले ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वहाँ सरदार का बेटा दिल ही दिल में बदले की आग लिए आयशा को रुखसत करके घर ले आया। अभी तक उसका शौहर कमरे में नहीं आया था। वो थकी हुई ऐसे ही बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद कर ली। अचानक दमदार एक दरवाज़ा खुला। सरदार का शराबी बेटा कमरे में दाखिल हुआ। वो उसको देखकर फौरन सीधी होकर बैठ गई। जैसे ही वो लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके पास आकर बैठा, उसके मुंह से शदीद किस्म की बदबू आ रही थी। वो एक ही झटके से उससे दूर हो गई। सरदार का बेटा उसको गालियां देने लगा और फिर कई थप्पड़ उसके मुंह पर मारना शुरू कर दिए। वो रो रही थी, न जाने उसे कौन से गुनाह की सज़ा मिल रही थी। उसका शराबी शौहर उसको मार मार कर जब थक गया, वहीं अपने बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ा और सो गया। और वहाँ आयशा मारे खौफ के कांप रही थी। उसे अपने अल्लाह से मदद मांगने के सिवा कुछ भी याद नहीं रहा था। उसने कांपते हाथों के साथ कुरान पाक उठाया, सीने से लगाया और एक कोने में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करने लगी। कुरान पाक की तिलावत करते हुए उसके दिल से खौफ कम होने लगा और कमरे से अगर बाहर जाती तो न जाने लोग उसके बारे में क्या सोचते। कुरान पाक की तिलावत करने की वजह से उसके शौहर की नींद में खलल आना शुरू हो गया और वो उठकर बैठ गया।
उसको कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखकर उसको मजीद गुस्सा आया और कहने लगा कि बड़ी नेक परवीन बनी फिरती है, ये तो मुझे नीचा दिखाने के लिए पढ़ रही है। तेरे पास तालीम है और मेरे पास नहीं है। अब देख मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। आज मैं ये तेरी ज़बान ही काट दूंगा, जिसकी वजह से मैं सारी उम्र अपने बाप से ताने सुनता आ रहा हूँ। वो गुस्से से उठा, उसने एक चाकू उठाया और चाकू उठाकर आयशा की तरफ चल पड़ा। आयशा ने रोते हुए कुरान पाक को अपने सीने से लगाया और अल्लाह ताला से मदद मांगने लगी। थोड़ी ही देर में पूरे घर में चीखों पुकार शुरू हो गई। सरदार और उसकी बीवी अपने कमरे में सो रहे थे। चीखों की आवाज़ सुनकर वो दोनों मियाँ बीवी उठे और उस कमरे की तरफ भाग पड़े। कमरा अंदर से बंद था। मुलाजमों को बुलाकर कमरे का दरवाज़ा तड़वाया गया। जब अंदर का हाल देखा तो उनकी सांसें रुक गई। उन्होंने देखा उनका बेटा ज़मीन पर लेटा तड़प रहा था। उसके पास एक चाकू गिरा हुआ था और वो कोने में आयशा कुरान पाक को सीने से लगाई खड़ी थी और सरदारनी आयशा को बुरा भला बोल रही थी और अपने बेटे को उठा रही थी। सरदार के बेटे को ना तो कोई चोट आई, ना कोई जख्म का निशान था। सरदार आयशा को पूछने लगा कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। वो रोते हुए सब कुछ बता रही थी और उसको फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया, मगर डॉक्टरों को भी ये समझ में नहीं आ रहा था। ना ही कोई मिर्गी का दौरा था, ना ही उसे फालज का अटैक हुआ था और उसकी आंखें फिर रही थी। अचानक देखते ही देखते घबरा कर डॉक्टर एकदम पीछे हट गए, क्योंकि वो देखते ही देखते एक कुत्ता बन चुका था, जिसे देखकर डॉक्टर खौफजदा हो गए और वहां से भाग गए। बेशक ये खुदा का अजाब था। सरदार के शराबी बेटे पर आयशा ने अपने अल्लाह ताला से मदद मांगी थी। ये अल्लाह की मदद थी कि वो अपने किए की सज़ा भुगत रहा था। आयशा अपने माँ बाप के घर वापस चली गई। अब वो हर वक्त हर लम्हा इबादत में मशगूल रहती। एक रोज़ सरदारनी आयशा के पास आई और आकर उसके कदमों में गिर गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। आयशा ने फ़ौरन उनको अपने कदमों से उठाया और कहने लगी, आपके बेटे ने मेरा दिल दुखाया था, मगर मैंने उसको माफ़ कर दिया। बस वो अल्लाह ताला का नाफरमान बंदा था। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उसको भी माफ़ कर दे। कुछ दिन गुजरे ही थे कि आयशा को खबर मिली कि उसके शोहर का इंतकाल हो चुका था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम नाजरीन, आप सब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ और कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। आखिर क्यों हर माँ बाप यही समझता है कि एक नेक सीरत बेटी ही, एक नेक सीरत बीवी ही बिगड़े हुए ख़राब आदतों के शोहर को सुधार सकती है। हालांकि ये काम बीवी का नहीं बल्कि एक माँ का होता है। अगर वो शुरू से ही अपने बेटे की अच्छी तरबियत करे तो वो कभी भी बुरी आदतों में नहीं पड़ता। मगर हमारे मुआशरे में सबसे बड़ी वजह दीन से दूरी है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे केसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमारी बेटियों के नसीब अच्छे कर